अपर बाउंड लोअर बाउंड समझ आ गया, राइट? हाँ हाँ ठीक है, तो अब लेट्स सॉल्व अ प्रॉब्लम टू सी कि तुम्हें सही से समझ में आया है कि नहीं। प्रॉब्लम है, गिवन अ sorted array and integer x, find the frequency of x. Basically you are given any sorted array, right? Having मतलब duplicates भी हो सकते हैं उसमें, obviously that's why they are asking you to हाँ find the हाँ frequency, है ना? या right. So let's take any example, 1 5 8 8 8 9 9 10 11 12 14 14 ऐसा कुछ, है ना? Let's say x is 9. You need to tell me what will be the frequency of this 9 in this array. ओके हाँ Okay, the answer in this case should be 2, या because the frequency of 9 is 2. Correct. So again linear search हम लगा सकते हैं obviously, है ना? Just iterate over the array, count the number of हाँ 9s, that's it. But वो काफ़ी costly है and we should not even think about it, क्योंकि अगर कोई हमसे ये प्रॉब्लम पूछ रहा है ना, तो obviously he is not interested in knowing linear search, but it is a general rule kind of in an interview you should always start with a brute force approach. ठीक है? Oh, okay. Always tell the interviewer you are not aware of this problem. ठीक है? You should always act like this कि ठीक है, if ओके this is kind of a new problem to me, how should I approach this? So first I should discuss the brute force approach. ठीक है? तो brute force approach क्या ही होगा कि we should iterate over this array one by one या and count the frequency. फिर इंटरव्यूअर बोलेगा okay, what is the time complexity and space complexity? You will say okay, the time complexity is order of n, space complexity is order of 1. Then interviewer will say okay, this is good, but can you optimize it? So now we are या at that point कि now how to optimize this. ठीक है? करेक्ट So again, it's your task to think about this problem for 1 2 minutes. Okay. Okay, या the problem is very simple. Given a sorted array and an या integer x, find the frequency of x, right? Right. Yeah, please think about it for some time.
So, any idea? Um, So I go ahead, Arnie. so I was thinking that so what if was so we'll find five for middle element first, and then we can count the elements on the right side and also left sides, and then check if the element that we want exists or not, and then if it does, we increment the count. Mm, but I would. but let's say in your approach, let's say कभी ऐसा हो जाता है कि जो तुम एलिमेंट ढूंढ रहे हो वो मिडिल में आ जाए, ठीक है? हाँ. x जो है वो मिडिल में आ गया. let's say this is the middle guy. Hmm. Now what you will do? You either have to move left or move right. तो तुम basically let's say अगर तुम left move करते हो तो you are actually missing out these elements, missing out these frequency, Oh, right? I was thinking Mm-hmm. we could use lower bound Mm-hmm. because that is like less than or equal to. Correct, So correct. it will be Lower like bound. 9. So it will also include 9, which is Mm-hmm. the element because it's equal to also. Lower bound क्या होगा? ये हो जाएगा, right? Yeah. And then And anything greater than that, so it will go to the right. basically first find out the lower bound and then what you should do? And then move to the right. Right. Keep moving to right, ऐसा? मतलब what you are saying? मतलब we need to find the frequency. So tell me मतलब एक क्या करना चाहिए हमें? So first you will go to the middle. First And we'll then go to middle. Okay. you'll find a lower bound of that. And you find the lower bound and it's 9. First, basically you are saying first find the lower bound. Yeah. Okay, so lower bound ये रहा, ठीक है. Now what I should do? Right. And then you increment the count if the x is equal to the So, lower bound. basically देखो, to calculate this lower bound I need to run a binary search, right? Whole binary search. Yeah. Basically you are saying कि first run a whole binary search to find this lower bound, correct? Yeah. तो lower bound जो है, the thing is you are saying कि lower bound will tell you what is the start position of 9, correct? Yeah, exactly. That's Okay, what now what I should do after finding lower bound? So basically देखो Well- 0 1 2 3 4 5 I got the point कि हाँ 9 is starting from index 5. Yeah. Now what I should do? So you increment the count once, Okay. and then you keep on हम्म. मान लो कि ये वैल्यूज भी 9 ही है, चलो. हाँ बताओ. you keep on moving until हम्म. the lower bound. No, basically the simplest thing is keep on moving until there is no 9, है ना? Yeah, basically. yeah, true, homie. Basically if we know the starting position of 9 then keep on moving till right till Yeah. once we got a different value we should stop. That's what you are saying, right? Yeah. Yeah. After you find the Okay, so what should be the time complexity of this approach? so you have binary search of log n. First of all we are doing a binary search, so order of log n. Log n. Then we will be incrementing the Plus. counter, so that will be nothing but frequency of x, right? Yeah. This is the time complexity. Yeah. Now tell me one thing, let's say if the array is having same value, मतलब 9999 ही पूरे array में है, so what will be your time complexity? It will be frequency of x will become n, the order of n, right? Yeah. So it's not that much good, right? क्योंकि order of n ही है देखा जाए तो. Oh yeah. The point is देखो यहाँ तक समझ आया कि नहीं कि we can find out the lower bound. Yeah, we have to use lower bound. Yeah. Correct. तो starting position मिल गई. हाँ. अब is Yeah. there any way to find out this ending position as well quickly? Ending position निकाल सकते हैं क्या? सोचो. एक तो लोअर बाउंड डिस्कस किया था ऊपर, एक और चीज भी डिस्कस की थी ना. एक Upper लोअर bound. होता है, एक अपर बाउंड होता है. तो बताओ अपर बाउंड क्या होगा 9 का? So we use upper bound to find 9, which is anything greater than 9, which is 9, 7, 14. Correct. And So then if this is upper once you bound, find that, it will be everything between Oh, that and that. yeah. correct. Good. So basically this is upper bound. This is This lower is bound. lower bound and upper bound. So basically you got this 9, you got this 5. Yeah. Just subtract 9 from 5 and you will get the frequency. Got the point? Yep. Yeah, so just That's a very optimized approach. What should be the time complexity of this approach? Basically just finding lower bound and upper bound, right? And it then will be doing the O of subtraction. log n. O of log n plus log n. So that is basically O of log n.
Yeah. दैट्स द पावर ऑफ लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। समझ आया थोड़ा थोड़ा पावर? हाँ तो हाँ लोअर हाँ बाउंड हाँ जो है वो हाँ तुम्हें स्टार्टिंग पोजीशन बता देगा, किसी एलिमेंट की क्या स्टार्टिंग हाँ पोजीशन क्या है, और अपर बाउंड जो है वो तुम्हें एंडिंग पोजीशन के बाद वाला एलिमेंट बता देगा। तो बस एंडिंग यप पोजीशन भी पता ही या है ना हमें इनडायरेक्टली। हाँ तो ये तो थोड़ी बहुत पावर पता चली। अभी देखो अब प्रॉब्लम एक सॉल्व करते हैं, उससे हमें काफ़ी अच्छी पावर पता चलेगी। तो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम नाउ, जो कि प्रॉब्लम ई है एक कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट का, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम दिस प्रॉब्लम आई नीड टू आई वांट टू शो यू कि जो डिवीजन 4 होते हैं ना कोड फोर्सेस के, वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ठीक है। जो डिवीजन 4 राउंड होता है, डिवीजन का क्या मतलब होता है, बेसिकली डिवीजन 1 इज द हार्डेस्ट, देन डिवीजन 2 इज Oh, कंपैरेटिवली इजियर, देन डिवीजन 3 इज कंपैरेटिवली मोर इजियर, एंड डिवीजन 4 इज द इजीएस्ट, ठीक है। so तो बेसिकली कोड फोर्सेस डू हैव 4 राउंड्स, 4 काइंड ऑफ राउंड्स, ठीक है। जो डिवीजन okay 4 है उसका ये प्रॉब्लम फिफ्थ है, ठीक है, दैट वी आर गोइंग oh टू सॉल्व नाउ। yeah So I am pasting the link in the chat. Please open this problem, read it by your own, okay and then we'll discuss. Okay. okay Yeah. Take some time to read the problem. yeah Clear problem? Yeah. So problems पढ़ लिया? हाँ So basically we have n candies and Ayat candy has a quantity of sugar AI. Okay. So by eating okay Ayat candy, he consumes sugar AI. Okay. Now they will ask you Q queries regarding his candies. For the jth query, you have to answer what is the minimum number of candies he needs to eat in order to reach a quantity of sugar greater than or equal to x k, or print -1 if it's not possible to obtain such a quantity. In other words, you should print the minimum possible k such that after eating k candies, Timur consumes a quantity of sugar of at least x. अब यहाँ पे क्वेरीज वगैरह अभी के लिए भूल जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ हाँ ऑल लेट्स सॉल्व अ वेरी बेसिक वर्जन कि आर वी एबल टू सॉल्व इवन अ सिंगल क्वेरी और नॉट, ठीक है। उसके बाद क्यू क्वेरीज कैसे करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। बेसिकली okay पॉइंट ये है कि लेट्स सी दिस, है ना। ये एक एरे है, ठीक है। 4 3 3 1 1 4 5 9, ठीक।
नाउ Hmm. दे विल आस्क यू सम क्वेरीज, फॉर एग्जांपल ये क्वेरीज हैं कुछ। अभी क्वेरीज में क्या बोल रहे हैं ना ये लोग कि बेसिकली देखो, एक बार क्वेरी देख लेते हैं और उसके आंसर भी देख लेते हैं ताकि समझ आ जाए क्या करना है। Yeah. फर्स्ट क्वेरी है 1, सेकंड क्वेरी है 10, थर्ड क्वेरी है 50, फोर्थ क्वेरी है 14 और फिफ्थ क्वेरी है लेट्स से 15। अब इनके आंसर्स भी देख लेते हैं, इनका आंसर हमें क्या प्रिंट करना है। तो 1 का आंसर है 1, 10 का आंसर है 2, 50 का आंसर है -1, 14 का आंसर है 2 और इसका आंसर है 3। ठीक है, बेसिकली तुम्हें क्या बताना है कि लेट्स से अगर कोई तुमसे पूछता है, तो ये बेसिकली तुम्हारे पास वैल्यूज़ है। ठीक है, Huh. हाँ अब क्वेरी में तुमसे एक चीज़ पूछी जा रही है कि मुझे एटलीस्ट 1 शुगर चाहिए, एटलीस्ट कम से कम मुझे 1 शुगर चाहिए। तो व्हाट इज़ द हाँ मिनिमम नंबर ऑफ कैंडीज आई शुड टेक। तो द आंसर इज़ 1। इनमें से कोई भी एक कैंडी उठा लो, एटलीस्ट एक शुगर आ जाएगा, Huh. राइट। दैट्स व्हाई आंसर इज़ 1। मतलब कम से कम कितने कैंडी उठाएंगे, तो मैं बोलूँगा सबसे बड़ा वाला कैंडी खा लो भाई, राइट, टू गेट एटलीस्ट दिस। द आंसर इज़ 1 क्योंकि आई कैन गिव यू 1 कैंडी इन विच यू विल गेट सफिशिएंट अमाउंट। समझ आ गई बात। Yeah. सेकेंड क्वेरी है मुझे 10 अमाउंट चाहिए शुगर का, तो कम से So कम 9 plus मिनिमम 1. कितना लगेगा। तो मैं बोलूँगा 9 plus 1. 9+1 भी बोल सकते हो, बट आइडियली मैं क्या बोलूँगा, 9+5 ले लो। जाओ, 9 9+1 देने से अच्छा है 9+5 दे दो ना। तो ये दे आर नॉट आस्किंग यू एग्जैक्ट वैल्यू। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है वी शुड हैव शुगर ग्रेटर देन और इक्वल टू XJ, मतलब ज़्यादा भी दोगे तो चलेगा। ठीक है ना, Huh. बेसिकली आंसर इज 2। नाउ दे आर आस्किंग यू टू हैव 50 शुगर, 50 शुगर होना चाहिए टोटल। तो मैं बोलूँगा यार 50 तो टोटल भी लगा लोगे तो नहीं है। इनका टोटल Huh. कितना है, 4 + 3 + 3 10, ये 16 No. 16 और ये 21 30 है टोटल। सारे भी कैंडीज दे दूंगा तो 50 नहीं हो पाएगा, दैट्स व्हाई द आंसर इज -1। No. Yeah. ठीक है, अब अगर 14 चाहिए तो कितने कैंडीज देना पड़ेंगे मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम 2. कैंडीज है, मिनिमम कैंडीज 2. वही ये दोनों देना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली 15 है तो देर इज नो वे, 3 तो देने ही पड़ेंगे क्योंकि अगर हमने दो बड़े बड़े ट्राई कर लिए नहीं सफिशिएंट हो पा रहा है, वी हैव टू इंक्लूड द अदर वन, राइट। Yeah. हाँ बेसिकली 3 तो देने ही पड़ेंगे। तो आंसर समझ आ रहा है इन सब क्वेरीज का। Huh. नाउ लेट्स फॉरगेट अबाउट क्वेरीज, फर्स्ट फोकस ऑन हाउ टू सॉल्व फॉर अ सिंगल क्वेरी। तो फॉर एग्जांपल अगर Okay. 10 दिया होता, ठीक है, तो आंसर 2 आता, तो ये कैसे निकालते हैं आंसर। बेसिकली व्हाट शुड बी द अप्रोच, हम Yeah. क्या करते हैं। देखो मिनिमम कैंडीज अगर लेना है तो वी विल ट्राई टू हैव द लार्जेस्ट कैंडीज फर्स्ट। Maximum. मैक्सिमम वाली कैंडीज फर्स्ट लेंगे ना, मतलब उनको लेने के पहले, Yeah, that's right. दैट शुड बी द Maximum. अप्रोच, राइट। कि जो सबसे बड़े Yeah. कैंडीज हैं उनको पहले ले लो। टू हैव मिनिमम Yeah. कैंडीज वी शुड फर्स्ट टेक द मैक्सिमम कैंडी, मतलब जो ग्रेटेस्ट Exactly. कैंडीज है उसको पहले लेना चाहिए ना। बेसिकली अगर हमें Yes. 10 लेना है तो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट टेक 9 एंड देन टेक Maximum 5, है ना। 5. We Right. need to Correct. take these Yeah, in correct. decreasing order such that till we get at least 10. Got the point? Got अगर it. मान लो 15 होता है इसकी जगह, तो हम क्या बोलते हैं, पहले 9 तो लेना ही पड़ेगा, फिर 5 लेंगे, फिर 4 ले लेते हैं। तो सिंस द सम इज एक्चुअली ग्रेटर देन greater than or equal to 15, we are good to go and the answer will be 3. Correct. तो बेसिकली अगर हमें सिर्फ एक क्वेरी के लिए सॉल्व करना होता तो हम कैसे करते हैं इसे सॉल्व, मतलब हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस। तो इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं कि हमें सबसे पहले लार्जेस्ट वैल्यू ही लेनी है, उसके बाद फिर उससे छोटी वैल्यू। Won't you sort the array first? करेक्ट, गुड। बेसिकली द आंसर इज फर्स्ट सॉर्ट द एरे, है ना, एंड वी कैन सॉर्ट द एरे इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। Yeah, डिक्रीजिंग ऑर्डर and में then you सॉर्ट कैसे take the करते हैं, first element. डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कैसे करते हैं, देखो कुछ नहीं करना होता, 9, सॉर्ट 5. ए डॉट बिगिन, मतलब कोड कैसे 9. लिखते हैं उसका, ए डॉट एंड, और यहाँ पे जो हम एक चीज़ डालते हैं वो डालते हैं ग्रेटर इंट, ये पता है, हाँ. यहाँ पे ग्रेटर इंट फंक्शन डालते हैं तो हाँ. सॉर्ट इट इन हाँ। रिवर्स डायरेक्शन। और तुम ऐसा भी कर सकते हो कि फर्स्ट नॉर्मल सॉर्ट कर लो, उसको रिवर्स कर देना, ऐसे भी कर सकते हैं ना, हाँ नॉर्मल सॉर्ट करके हाँ. उसको रिवर्स कर दो, राइट। Yeah. कैसे भी कर सकते हैं, तो वो अपने ऊपर है, मतलब उस टाइम जो भी दिमाग चल जाए वैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली अब अगर हम इसे सॉर्ट कर लेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये एरे क्या बन जाएगा, 9 5 9, 5, 4 4, 4 4, 3 3, 3 2, 1, 1 1. 1। अब इसको भूल जाओ क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है, हाँ. अब इसका यूज़ है। तो बेसिकली अगर 10 चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 9 और ऐसे करके लेते जाओ टिल 10 ना हो जाए, टिल सम रीचेस 10। आ रही बात समझ में। हाँ वी हाँ. विल स्टार्ट फ्रॉम 0th का है क्योंकि ये बिगेस्ट एलिमेंट है ना, हमें पता है। तो बस अगर कोई भी क्वेरी को सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, अगर लेट्स से कि यहाँ पे कोई अच्छी सी क्वेरी देखते हैं,
इससे यहाँ पे 30 होता, 30 का आंसर 30 नहीं 22 होता। चलो 22 को सॉल्व कैसे करते हैं? वी विल स्टार्ट फ्रॉम 9। सम क्या हुआ अभी? Yeah. 9। सम मूव फॉरवर्ड। सम क्या हुआ? 14। मूव फॉरवर्ड। सम क्या हुआ? 18। मूव हाँ फॉरवर्ड। 22 मिल गया, 22 एटलीस्ट हो गया। आंसर इज 4। समझ गए? हाँ हाँ। हाँ. So basically, to answer a query using this way, what is the time taken? Or like how much time I'm taking to answer a query using this way? In worst case, I need to like iterate through the entire array, isn't it? oh yeah so often O of n for one query, right? So for yeah one one query, query I'm taking order of n time worst case. So do we have q queries? तो total time complexity क्या हो जाएगा? O of n O times of q. Q times N. Now will it be possible to run O of n No, times that's q? really big. Correct. मतलब looking at the Yeah. constraints, it is not possible, right? Yeah, No. So we need to do something smart. right. Basically let's focus on optimizing the single query, ठीक है? अभी ऑर्डर ऑफ एन में हम सॉल्व कर रहे थे, तो क्या हम इसको हाँ. थोड़ा और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं? Um, इफ़ यू लुक क्लोजली, देखो ध्यान से, अगर Can लेट्स you? से कि 22 वाला एग्जांपल भी हम लें, तो हम क्या बोल हाँ. रहे हैं? अगर 22 वाला एग्जांपल, वी नीड द स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स सम, राइट, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल Yeah. टू 22, इजंट इट? क्योंकि ये जो So we सम है can वो use प्रीफिक्स सम ही तो है। lower bound. करेक्ट, वी कैन यूज लोअर बाउंड ऑन प्रीफिक्स सम। Yeah, on फर्स्ट prefix some, sum. yes. फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट प्रीफिक्स सम एरे, ठीक है? And then Correct. only we can use तो lower bound. पूरा Then only you can प्रीफिक्स use. सम एरे बना लो। प्रीफिक्स सम एरे यही तो हाँ. स्टोर करता है कि प्रीफिक्स का सम क्या है, राइट? Right, हाँ. right. 9, तो ये बन 14, गया, 18, राइट? अब 29, अब हर 30. क्वेरी के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, तुम्हें पूछना है इस प्रीफिक्स सम में कि व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू व्हिच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 22, व्हिच इज नथिंग बट इंप्लीमेंट, मतलब व्हाट इज द लोअर बाउंड ऑफ 22। लोअर Yeah, बाउंड lower ऑफ 22 bound. क्या हो गया? ये हो गया, तो आंसर क्या हो गया? व्हाट इज द इंडेक्स? 3। बट सिंस द इंडेक्स इज Right. 3, हाउ मेनी कैंडीज डू वी हैव? तो सिंस दिस इज जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, तो कैंडीज कितने हो गए? 4 हो गए, राइट? तो हाँ. बेसिकली यू नीड टू 4. प्रिंट इंडेक्स प्लस 1। समझ गए? Oh yeah, that's right. So 3 हाँ plus 1. दैट्स Yeah. द सॉल्यूशन कि फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट प्रीफिक्स सम। तो ये तो हो गया प्री कंप्यूटेशन, राइट? ये शुरुआत में ही बना लेंगे हाँ बिफोर आंसरिंग एनी क्वेरी। नाउ टू आंसर अ Okay. क्वेरी वी जस्ट नीड टू रन अ लोअर बाउंड। और लोअर बाउंड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है बताओ? ऑर्डर ऑफ लॉग एन, अभी तो डिस्कस करके आए थे, oh lower bound. Lower Yeah, bound. है ना? Yeah. लोअर बाउंड इज नथिंग बट बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च से इम्प्लीमेंट binary करते हैं। search लॉग एन से order. एवरी क्वेरी पे हम काम कर सकते हैं। एंड टू आंसर क्यू Right. क्वेरीज टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बिकम ऑर्डर ऑफ क्यू Q इनटू times. लॉग। तब अगर इसका कोड देखेंगे तो वो भी इजी सा है, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट, तो फर्स्ट स्टेप इज टू सॉर्ट द एरे, एंड ग्रेटर इंट Right. मैंने लिखा है बिकॉज सॉर्टिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। Yeah. देन Correct. Then you create a prefix then array. we create a prefix array. So this is how we create a So prefix array, right? yeah. Right. Correct. Yeah. Now We to do. answer each query, so this is just a loop to run for q times, while q minus minus will run Yeah. for q time. You just take in the input and then the Just lower took the bound. input and then I just check whether the last element of prefix element है ना, prefix का है, अगर ये हाँ. 30 लेस देन है क्वेरी एलिमेंट से, इट मीन्स द आंसर इज नॉट पॉसिबल फॉर x, है ना? फॉर एग्जांपल अगर x No, 50 हो no. गया, टोटल सम से x बड़ा हो गया, तो दैट्स व्हाई इफ prefix dot हाँ. back is less than x, आंसर इज नॉट पॉसिबल। Yeah. else we need to find the index। index क्या होगा? Correct. lower bound prefix dot begin prefix dot end x minus prefix dot begin। ये माइनस क्यों किया पहले ये बताओ? Oh, because because of the Minus. iterate. हाँ करेक्ट, The lower bound always returns an yeah iterator, so to iterator. So get we the can't have index, that. So we need हाँ, to to do. get the index we minus it, We need to do we need to minus. Yeah. subtract it from the हाँ. begin iterator। index मिल गया, we just need to print the index plus 1, that's it। Correct. आ गया समझ में? हाँ. तो देखो अब तुम लोगों ने खुद ही सॉल्व किया, मैंने भी नहीं बताया इसमें तो ज़्यादा, तुम लोगों ने खुद ही सॉल्व कर लिया Yeah. प्रॉब्लम ई, वो भी डिवीजन 4 का, राइट? बेसिकली प्रॉब्लम्स Yeah. इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं अगर हमें कॉन्सेप्ट्स आते हो तो, करेक्ट? That's true. Correct. Yeah. गुड। तो अभी लोअर बाउंड अपर बाउंड का थोड़ा और फील आया होगा इस प्रॉब्लम से, राइट? Right. हाँ. ओके, तो नाउ वी आर मूविंग टू द एंड ऑफ दिस सेशन, धीरे धीरे, ठीक है? तो अभी मैं थोड़ा सा तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अभी तक तो हमने बाइनरी सर्च प्रॉपर डिस्कस किया, राइट? तो हमें दिखता है कि यार सॉर्टेड एरे है, एज यू कैन सी प्रीफिक्स सम भी हमेशा सॉर्टेड एरे ही बनता है, राइट? अगर नेगेटिव वैल्यूज ना हो Right. तो।
हाँ इफ देयर आर नो नेगेटिव वैल्यूज वी नो कि ये जो सम है वो हमेशा बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव Right. वैल्यूज ही हैं तो सम बढ़ेगा। प्रीफिक्स सम हाँ भी सॉर्टेड एरे था, तो इसलिए वी आर एबल टू अप्लाई बाइनरी सर्च, है ना। नाउ वी हाँ डिस्कस सम प्रॉब्लम्स इन विच यहाँ कुछ नामो निशान ही नहीं रहेगा सॉर्टेड एरे का, which is what we call the concept is binary search on answer। हाँ ये कॉन्सेप्ट का नाम है। ओके बाइनरी सर्च एंड आंसर। अब इस ये एक्चुअली में पता है इसके जो प्रॉब्लम्स है ना वो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। एक जो हमने लोअर बाउंड इम्प्लीमेंट नहीं किया था वो एक्चुअली इसी का हाँ टाइप है। हाँ ओ इस टाइप के प्रॉब्लम्स में हमें क्या करना होता है, देखो पहले हमें इस टाइप के प्रॉब्लम्स में सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें वो फॉल्स 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 ट्रू 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 वाले में रिड्यूस करना है, ठीक है। Correct. अगर प्रॉब्लम इसमें रिड्यूस हो गई ना तो फिर तो तुम सॉल्व कर लोगे खुद से, राइट। हाँ तुम क्या करोगे, प्रॉब्लम वो चेक फंक्शन इम्प्लीमेंट कर ही लोगे टू चेक वेदर अ वैल्यू इज ट्रू और फॉल्स, एंड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ट्रू और फॉल्स वी कैन टेक द डिसीजन, राइट, टू फाइंड द फर्स्ट ट्रू, हाँ है ना। तो यही करना होता है इन सब अगर प्रॉब्लम्स में, कि बाइनरी सर्च और आंसर वाले प्रॉब्लम्स में, ठीक है। हाँ तो बेसिकली लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बाइनरी सर्च और आंसर कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है। Okay. बाइनरी सर्च और आंसर जो ये कॉन्सेप्ट है ना, इट विल बी यूजफुल टू सॉल्व ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। अभी Correct. ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स वो होता है इन विच, ऑप्टिमाइजेशन से मतलब ही समझ आ रहा है ना कि वी नीड टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज समथिंग, इन विच Yeah. यू नीड टू ऑप्टिमाइज समथिंग। अब ऑप्टिमाइज का क्या मतलब हो सकता है? इन सम केस इट कैन बी मिनिमाइज, इन सम केस इट कैन बी मैक्सिमाइज समथिंग, राइट। Correct. Right. मिनिमाइज और मैक्सिमाइज सम, बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स यही होते हैं in which you need to minimize or maximize something. For example, this is also a kind of optimization problem, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें minimum number of candies बताने थे, तो minimum number of candies मतलब ये भी तो ऑप्टिमाइज ही कर रहे हो ना तुम। दिस इज ऑल्सो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, है ना। इन विच देखो किसी भी प्रॉब्लम में अगर तुम्हें आंसर को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, लेट्स से वो पूछता है टेल मी द मिनिमम एक्स, टेल मी द मैक्सिमम एक्स, ऐसा कुछ भी पूछता है तो वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। बेसिकली जो बाइनरी सर्च और आंसर कॉन्सेप्ट है ना, इट विल बी यूजफुल इन दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विच इज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? ओके हाँ हाँ तो नाउ समझ लेट्स ट्राई अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है, टू अंडरस्टैंड बाइनरी सर्च और आंसर कॉन्सेप्ट। तो तुम लोग को इतना डिफिकल्टी नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि वो फॉल्स 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 ट्रू 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 कैसे सॉल्व करते हैं। Right. अभी Right. इसको ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। हाँ तो ब्रेक वगैरह चाहिए या एवरीथिंग इज गुड? No, everything is good. गुड लेट्स अंडरस्टैंड अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। हाँ सिंपल प्रॉब्लम मतलब नॉट सिंपल, बस एक सिंपल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज गिवन अ वैल्यू n, ठीक है, Yeah. एक इंटीजर है n, Mm, टेल मी द स्मॉलेस्ट और यू कैन से मिनिमम, मिनिमम थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में, टेल मी द मिनिमम x such that x into x or you can say x square is greater than or equal to n. Yeah. Basically I will be giving you an integer value n and you need to tell me what is the minimum x such that its square is greater than or equal to n. For example, agar n is 10, so what should be the answer? What is the minimum x which is having square greater than or equal to 10? मिनिमम x मतलब मिनिमम कोई वैल्यू जिसका स्क्वायर जो है वो 10 से बड़ा हो। 4 करेक्ट, आंसर इज 4, है ना। Four. हाँ Similarly, if हाँ I give you if n is 5, then in this case answer should be um wait 5 so that will be 3 करेक्ट। इतना इसमें सोचना क्या है, मतलब yeah थोड़ा जल्दी बता सकते हो। If n is हाँ 25, then answer will be 25 so 4 Four. 5 करेक्ट 5, क्योंकि 5 स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, राइट, मतलब इट विल बी Yeah. इक्वल टू 25। तो ये समझ आ गया ना, मतलब बेसिकली हाँ मिनिमम एक्स, है ना। तो अभी ये प्रॉब्लम को थोड़ा सा सोचो 2 मिनट्स। प्रॉब्लम यही है, गिवन अ वैल्यू n,
टेल मी द मिनिमम एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। और इसमें फर्स्ट मैं तुमसे ब्रूट फोर्स अप्रोच पूछूंगा कि ब्रूट फोर्स से कैसे कर सकते हैं, एंड देन वी विल सी कि हाउ वी कैन एक्चुअली ऑप्टिमाइज दिस ब्रूट फोर्स यूजिंग बाइनरी सर्च और आंसर टू अ वेरी ऑप्टिमाइज वर्जन। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रूट फोर्स तैयार हाँ रखना, उसके बाद फिर ऑप्टिमाइज अगर दिमाग में आता है तो वो भी तैयार रखना, बट फर्स्ट ट्राई टू थिंक ऑफ ब्रूट फोर्स सोल्यूशन कि ब्रूट फोर्स कैसे कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, राइट। के बाद फिर हम ऑप्टिमाइज सोचेंगे। तो ये प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से सोचो, ठीक है। हाँ um, या एनी ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स तो मतलब देखो, ब्रूट फोर्स में क्या करना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जो सिंपलेस्ट अप्रोच है वो बताओ। we can just check the like, so if it's 10 then we would just check whatever is below that, like the number is 9, so what's the square root of that, like that. स्क्वायर रूट तक भी जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैंने क्या बोला, ब्रूट फोर्स इज द सिंपलेस्ट वन बेसिकली। देखो मैं ये बोलूँगा ब्रूट फोर्स में, लेट्स से दिस इज n, ठीक है, n इज 10, तो हाँ आई नो कि लेट्स से व्हाट आई शुड डू इज कि चलो ठीक है, व्हाट कैन बी द रेंज ऑफ माई आंसर, है ना, जो मेरा आंसर होगा कि रेंज क्या हो सकती है। बेसिकली इट कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है, Yeah. जो मेरा x होगा ना, बेसिकली यहाँ पे x लिख लो, चलो उसका रेंज क्या हो सकता है। मैंने बोला ठीक है, मिनिमम वैल्यू जो है वो जीरो हो सकती है ना, Correct. जीरो से कम तो नहीं होगी, क्योंकि वी आर ऑल मतलब वी आर, यू कैन अज्यूम कि वी आर टॉकिंग अबाउट विच इज, मतलब ये n भी पॉजिटिव है यहाँ पे, और वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट नॉन नेगेटिव x, ठीक है, Right. स्मॉलेस्ट। अदरवाइज ऐसे तो फिर इस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि x को मैं माइनस इन्फिनिटी बोल दूंगा, है ना, एंड माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन n। तो ऑब्वियसली मतलब द कंस्ट्रेंट इज कि x जो है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, और n भी जो है वो नेगेटिव नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि अदरवाइज नेगेटिव होता तो भी कोई वैल्यू वो बनेगा नहीं इसका सेंस, है ना। n भी पॉजिटिव है ऐसा समझो, और x भी नॉन नेगेटिव है, ठीक है। तो अब मैंने ऐसा सोचा कि ठीक है, अगर x नॉन नेगेटिव है इट मीन्स इट कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो, है ना। तो वर्स्ट केस में लोएस्ट Right. वैल्यू तो जीरो हो सकती है इसकी, है ना। और हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है वर्स्ट केस, मतलब मुझे पता है कि वो हिट भी नहीं करेगा, बट हाईएस्ट वैल्यू क्या ही हो सकती है। अगर n 10 है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि लेट्स से 10 से ज़्यादा तो नहीं होगा आंसर ऑब्वियसली, क्योंकि 10 इंटू 10 तो 10 से बड़ा ही है। अगर n 10 है तो x 10 से बड़ा थोड़ी हो सकता है, राइट, क्योंकि हमें पता है ना कि 10 इंटू 10 तो ऑब्वियसली 10 से बड़ा है, तो x का वैल्यू तो इस पे ट्रू ही है, तो समझो, तो आगे सब पे ट्रू ही होगा ना, मतलब 11 के लिए 12 के लिए भी तो चलेगा ही। बेसिकली देयर इज नो नीड टू चेक फॉर Right. फर्दर्स, राइट। यहाँ तक समझ आया हाँ. कि जो x है वो 0 से 10 के बीच में कहीं होगा, है ना, विच इज ऑब्वियसली हाँ. ट्रू।
तो मैं बोलूँगा Obviously, ठीक है, अगर ऐसा केस है तो सारे नंबर्स लिख लो एक बार, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर मुझे पता है कि एक्स इन्हीं में से कोई है, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या बोलेगा, वन बाय वन चेक कर लो, और क्या ना, वन बाय वन हाँ, चेक कर लो कौन सा एलिमेंट मिलता है। तो यहाँ पे मैंने चेक किया, क्या 0 का स्क्वायर 10 से बड़ा है, द आंसर इज नो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। 1 का स्क्वायर नहीं बड़ा है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। 4 का स्क्वायर बड़ा है 10 से, तो दिस इज द आंसर। यहाँ तक आया समझ में? दिस हाँ इज द ब्रूट फोर्स अप्रोच। हमने क्या किया, फर्स्ट वी कैलकुलेटेड द आंसर रेंज, है ना, तो ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट ट्राई टू हैव एन अप्रोक्सीमेट आंसर रेंज, की इसके बीच में तो आंसर पक्का आ जाएगा। तो आंसर रेंज बनानी होती है, जिसको हम सफिशिएंटली लार्ज बनाते हैं। देखो यहाँ पे सफिशिएंटली लार्ज बनाई ना मैंने, मुझे पता है कि 10 तो आंसर नहीं है, बट ऑब्वियसली 10 के बाहर कोई आंसर नहीं रहेगा, मुझे ये पता है। मतलब right. आई नीड टू मेक श्योर कि मेरी आंसर रेंज जो है वो सफिशिएंटली लार्ज हो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। यहाँ तक समझ आया? Okay. हाँ, अब अगर तुम ध्यान से देखोगे ना इस प्रॉब्लम को, तो ये सेम ही प्रॉब्लम है ट्रू फॉल्स वाली। यहाँ पे भी सेम चीज़ मैं बोल दूंगा कि अगर कोई वैल्यू, है ना, अगर उसका स्क्वायर जो है वो लेस देन 10 है, इट मीन्स इट इज़ फॉल्स, एल्स इट इज़ ट्रू। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ तो देखो ये वैल्यूज़ का मैपिंग कैसे बनेगा। अब अगर मैं एक्स के साथ इसका वर्डिक्ट लिखूँ ना, वर्डिक्ट मतलब वही ट्रू फॉल्स, ठीक है, तो हाँ, देखो कैसे बनेगा। 0 विल बी फॉल्स, 1 will be false, 2 will be false, 3 will be false, 4 will be true, एंड अगर 4 ट्रू है तो सब लोग ट्रू होंगे बाय दिस, है ना, क्योंकि वैल्यू इंटू yeah. वैल्यू, अगर 4 इंटू 4 ग्रेटर देन 10 हो जाता है, तो पक्का 5 इंटू 5 भी ग्रेटर देन 10 होगा, 6 इंटू 10 6 भी ग्रेटर देन 10 हाँ, होगा। तो अब इस चीज़ को देख के कुछ याद आ रही है क्या? oh, ये yeah. यू नीड टू फाइंड दिस गाय विच इज फर्स्ट ट्रू, Oh, right? So basically we can again use the same concept कि we can again use binary search over answer range। यहाँ पे देखो थोड़ा सा चेंज आया, यहाँ पे चेंज क्या आया, यहाँ पे कोई एरे नहीं दिया हुआ था, है ना, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू दिया था, yeah. है ना। हमने क्या Yeah. किया, सबसे पहले हमने एक आंसर की रेंज बनाई, और हम बाइनरी सर्च अब इस रेंज पे लगाएंगे, समझ रहे हो? दैट्स व्हाई इट तो इज फिर कॉल्ड, हाँ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइनरी सर्च ऑन आंसर, कि हम आंसर की एक रेंज बनाते हैं और उस पर बाइनरी सर्च लगा देते हैं। आ रही बात समझ में? हम्म, बिकॉज वंस वी नो ना कि ये आंसर की रेंज है, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या बोलता है कि यार दिमाग मत लगाओ, वन बाय वन लेट्स चेक फॉर एवरीबडी। बट हमें पता है कि जब हम इसका वर्डिक्ट निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना, एंड द right. प्रॉब्लम इज एक्चुअली आस्किंग मी टू गेट दिस फर्स्ट ट्रू। So is there any better way to find this first true? The answer is yes, definitely there is a better way, and that's binary search. You can actually binary search over this range, है ना, जैसा कि हमने लोअर बाउंड में भी किया था, हाँ, उसको भी, उसमें भी हमने सेम चीज़ की थी कि हर वैल्यूज़ को ट्रू और फॉल्स में मैप करके देखा था कि क्या हमें right. वैसे ही पैटर्न मिल रहा है क्या, एंड सिंस वी आर गेटिंग Right. द सेम पैटर्न वी कैन एक्चुअली अप्लाई बाइनरी सर्च एंड डू द सेम थिंग। यहाँ पे अब देखो चेक फंक्शन क्या बनेगा, बस चेक फंक्शन चेंज होगा, इजंट इट? चेक फंक्शन ये बनेगा बस, और क्या। लोअर बाउंड पे अगर Yeah. हम जाएं, हमने लोअर बाउंड जब इम्प्लीमेंट किया था, तो ध्यान से देखो क्या किया था, हमने एक चेक फंक्शन बनाया था ना, टू टू चेक वेदर, ये क्या रिटर्न करता था कि कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पे फॉल्स है या ट्रू है, यही तो चेक फंक्शन का काम है, राइट, हाँ, टू टेल वेदर अ हाँ, पर्टिकुलर मिड गाय इज ट्रू और फॉल्स। यही तो हम देखो किए थे यहाँ पे, ध्यान से देखो, जब वी आर रनिंग दिस लूप व्हाइल एल इज लेस देन इक्वल टू आर, रुको थोड़ा सा कमेंट आउट करने दो इसको, और इस चीज़ को कमेंट करने दो, चलो ठीक है। जब हमने यहाँ पे देखा था कि वाइल एल इज लेस देन इक्वल टू आर, तो हमारे पास वहाँ पे तो एक रेंज थी, राइट, वहाँ पे हमारे पास एक एरे था, बट यहाँ पे हाँ, हमारे पास कोई एरे नहीं है, यहाँ पे हमने खुद से एक रेंज बनाई, समझ आया? खुद से हमने एक सफिशिएंटली लार्ज रेंज बनाई जिसमें हमें पता है कि पक्का आंसर होगा, ठीक है। नाउ वी, फिर हमने कॉपी पे ऐसे वर्डिक्ट बना के देखे, तो देन वी एक्चुअली गॉट टू नो कि यार वर्डिक्ट तो वो वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि फर्स्ट देयर विल बी सम फॉल्स एंड देन देयर विल बी ट्रू 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 ट्रू, एंड वी नीड टू फाइंड द फर्स्ट ट्रू, एंड दैट्स व्हाट वी नो हाउ टू डू दिस, राइट। तो इन सिमिलर फैशन देखो हम ऐसे ही करेंगे कि हम बाइनरी सर्च लगाएंगे, यहाँ पे हमारा रेंज क्या होगा, 0 से n, 0 से, देखो ये 0 है, ये n है, दिस n, राइट, right. n तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, मतलब गिवन वैल्यू n, तो n अगर 10 है तो 10 तक ही लगाएंगे, राइट।
एंड देन वी विल रन द बाइनरी सर्च, और यहाँ पे मिड, वही मिड निकालेंगे, फिर उसको चेक करेंगे वेदर इट इज ट्रू और नॉट। ठीक है, तो अब चेक फंक्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में चेक फंक्शन ये हो जाएगा कि इफ मिड इनटू मिड इज लेस देन n, देन रिटर्न फॉल्स, एल्स इट Then इज ट्रू। return false and yeah. करेक्ट, और द सेम थिंग Yeah. कि अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो वी शुड मूव लेफ्ट, बट वी शुड ऑल्सो अपडेट द आंसर, एंड इफ इट इज Else we just फॉल्स move right. we just move right. So that's the same thing. We can Yeah. also solve this problem, right? Very Yeah. quickly. So basically, मैं जस्ट इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे लोअर बाउंड को, ठीक है, टू हाँ. सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो बेसिकली इसका नाम स्क्वायर रूट कुछ दे देते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट डॉट cpp। तो बेसिकली देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमारे पास कोई वेक्टर नहीं है यहाँ पे, हमारे पास कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये देखा जाए तो बेसिकली हमारे पास सिर्फ एक n है, राइट। अब हमें क्या करना है, अपना रेंज बनाना है, तो रेंज l जो है वो 0 है, r जो है वो n है, दिस इज व्हाट वी कॉल आंसर रेंज। ठीक है, उसके बाद हमें बाइनरी सर्च लगा देना है, क्योंकि हमें पता है हम बाइनरी सर्च क्यों लगा रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमें पता है कि जो वर्डिक्ट है वो ऐसा दिख रहा है, समझ गए, Yeah. दैट्स व्हाई वी आर एबल टू अप्लाई बाइनरी सर्च। तो हमने वही किया, Okay. मिड एलिमेंट फाइंड आउट किया, तो उसको चेक कर लिया। तो अब चेक करने के लिए यहाँ पे सिर्फ हाँ. मिड वैल्यू को भेजने की ज़रूरत है और n को भेजने की ज़रूरत है, दैट्स इट, है ना। चेक फंक्शन को बस ये दो चीज़ तो चाहिए, मिड और n। हाँ. इफ इट इज ट्रू, इफ चेक फंक्शन विल रिटर्न 1, तो ये फंक्शन, ये इफ कंडीशन चल जाएगा, तो इट मीन्स इट इज हाँ. ट्रू। इफ इट इज ट्रू आई शुड अपडेट माय आंसर, तो लेट्स आल्सो क्रिएट द आंसर वेरिएबल, लेट्स लाइक डिफाइन इट विद 0। तो ये तो सेम ही चीज़ है, यहाँ पे अपडेट करो, मूव लेफ्ट करो, एल्स Yeah. मूव राइट करो, बाद में आंसर प्रिंट कर दो, बस चेक फंक्शन चेंज हो जाएगा। चेक फंक्शन क्या होगा ये बताओ। It will be like the value times value, like हाँ, तो बेसिकली देखो, इफ मेड इनटू if मेड value इज ग्रेटर देन made इक्वल टू into n, इसका क्या मतलब है, ये yeah, एक ट्रू वर्डिक्ट है। true. इफ मेड इनटू मेड ग्रेटर देन इक्वल टू n है, If यहाँ पे made देखो, into made, so 4 times 4 is करेक्ट, yeah. ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू, सब लोग ट्रू हैं, तो ये लोग ट्रू हैं सर, दैट्स व्हाई आई एम Yeah, रिटर्निंग so 1, do return 1. एल्स आई शुड रिटर्न 0, समझ गए। हाँ. लेट्स ट्राई फॉर एनी इनपुट, बोलो कोई भी इनपुट बोलो। 1 3 8 8. अरे इतना भी बड़ा मत बोलो कि हम खुद ही चेक ना कर पाए। 1 3 अभी चेक करते हैं ना, 1 3 Yeah. के लिए आंसर इज 4, ठीक है, Yeah. 100 के लिए द आंसर इज 10, Yeah. 50 के लिए द 28. आंसर इज 8, 28 9. 28 के लिए द आंसर इज 6, वी हाँ. गेटिंग करेक्ट आंसर। अब ये बताओ कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, O of log n. करेक्ट log n, क्योंकि ये जो है वो log n तक चलेगा, है ना, ये लूप, और उसके बाद चेक फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ 1, Order of 1, so that's just तो O of log n. O ऑफ log n। तो बेसिकली अब ध्यान से देखें, अगर अपन O ऑफ log n, तो अगर किसी केस में तुम्हें ये जो n है इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा भी दे देते हैं, मान लो 10 to the power 18 तक भी दे देते हैं, तो विल यू बी एबल टू सॉल्व दिस यूजिंग बाइनरी सर्च, द आंसर इज येस। क्योंकि अगर तुम यहाँ पे n की जगह 10 to the power 18 डालोगे तो कितने स्टेप्स लगेंगे, ऑर्डर ऑफ log ऑफ 10 to the power 18 विच इज So 18 18 into times 3.3, तो which is not much. विच इज नॉट मच, 100 मान लो, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 100 Yeah. स्टेप्स में तुम्हारा हो जाएगा काम। दैट्स द पावर ऑफ बाइनरी सर्च, करेक्ट। Correct. तो बेसिकली अगर कोई तुम्हें इतना बड़ा वैल्यू भी दे देता है ना 10 to the power 18 तक भी, फिर भी यू आर जस्ट टेकिंग मेयरली 100 स्टेप्स टू टेल हिम कि व्हाट इज द मिनिमम x सच दैट x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, Yeah. समझ आया। Yeah. तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ये वेरी बेसिक एग्जांपल है ऑफ बाइनरी सर्च ओवर आंसर, ठीक है। तो कल के सेशन में हम थोड़े एडवांस प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे बाइनरी सर्च पे, जो कि सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बाइनरी सर्च ओवर आंसर का, ठीक है। Okay. तो कल, आज का सेशन तो यहीं तक है, तो कल हाँ. तुम्हें क्या करना है, यू नीड टू मेक श्योर, बताओ तुम बताओ क्या करना पड़ेगा तुम्हें। Rewatch this recording करेक्ट, वॉच दिस and then रिकॉर्डिंग, implement the हाँ, problems. इम्प्लीमेंट एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, और यू शुड ऑल्सो सॉल्व दैट कोड फोर्सेस प्रॉब्लम, ठीक है, दैट आई Oh yeah, दैट वी that जस्ट will सॉल्व, help. ठीक है। तो उस वो तो तुम रिकॉर्डिंग में उसका प्रॉब्लम नेम दिख जाएगा, उसी को सर्च करोगे ना, उसके बाद कोड फोर्सेस डाल दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। Eating queries. हाँ. इम्प्लीमेंट योरसेल्फ, ठीक है, इतना चीज़ें करके आनी है कल के सेशन में, Okay. समझ गए। हाँ.
Okay, so any doubts from today's session? No. Good. तो बेसिकली मैंने इतना अच्छा पढ़ाया क्या कि कोई डाउट ही नहीं आया? No, it was actually good. ठीक है, तो ये समझ गए ना कल क्या करके आना है? हाँ. इतना करने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए, तो इसलिए तुम्हें वो जो हाँ. सेशन 2 के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है ना वो भी करते रहने हैं, ठीक है? हाँ, हैशिंग वाला, हाँ. प्रैक्टिस प्रॉब्लम, बट मेक श्योर कि प्रायोरिटी फर्स्ट इसको देना है, बिकॉज कल ही हाँ, सेशन है, definitely. कल ही सेशन है, No. तो वी नीड टू मेक श्योर कि ये चीज़ फुलफिल हो, Yeah, no, Okay. we'll ठीक do है? this for sure. उसके बाद हमें ये चीज़ करनी है, गॉट द पॉइंट? हाँ. ठीक है, तो Okay. आज का सेशन तो यहीं तक था। अब तुम्हारे कुछ डाउट्स थे ना, आई गेस, Yeah. तो अभी करना है या थोड़ा ब्रेक चाहिए? हम ब्रेक, We can just do it now. What problem was it, Arani? Number 3. Yeah. ओके, चलो मतलब क्विकली देख लेते हैं क्या डाउट है। नंबर 3, ओके, ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है एक्चुअली। फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर इन एवरी विंडो ऑफ साइज के, तो ये बेसिकली तुम्हें याद हो, ये प्रॉब्लम फिक्स साइज विंडो का है, राइट? Right. Okay. इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, so let's use a different document. So yeah, इस प्रॉब्लम में तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये स्लाइडिंग विंडो का ही प्रॉब्लम है, फर्स्ट ऑफ ऑल समझ में आ ही रहा है देख के, क्योंकि विंडो साइज फिक्स्ड है, राइट? हमें क्या करना है, अगर हमारे पास एक एरे दिया हुआ है -8, 2, 3, -6, 10, अब विंडो साइज भी देंगे वो लोग विच इज़ 2, ठीक है? तो मैं हर विंडो साइज 2 के जो सब एरेज बनेंगे उसमें फर्स्ट नेगेटिव नंबर बताना है, राइट? First Okay. in every window. ये वाला So, ये वाला एग्जांपल देखते हैं, चलो वो ऊपर वाला तो उसमें तो Okay. कुछ सीख नहीं पाएंगे, ये वाला एग्जांपल। okay. 12 -1 -7 8 -15 Hmm. 30 30, 16 16, 28. 28, ठीक है? एंड के इज 3, तो सारे सब एरेज देखना पड़ेंगे जो 3 साइज के, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सब एरे, व्हाट इज द फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू? Minus -1. -1. Then next sub array is this. What is the Hmm. first negative value? Minus 1. -1. Then this sub array. What is Minus the -7. 7? Then minus -6. -15. -7. Then Minus -15. 15. Minus -15. -15. -15. No. फिर इस वाले सब array में कुछ भी नहीं है तो we will say 0. ये Zero, प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ठीक है? If there is nobody, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई नहीं है, does not contain a negative Yeah. integer, तो 0 बोल दो, ठीक है? Okay. ओके, तो अभी इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? बेसिकली आइडिया तो सेम ही रहेगा कि हम एक एक करके सब एरेज पे मूव करेंगे, राइट? एंड वी नीड टू मेक श्योर सम थिंग्स, लेकिन कैसे, तो क्या कर सकते हैं? Um, देखो, जब हमने ये सब एरे लिया तो ये सब एरे का तो हमें पता था कि हाँ फर्स्ट एलिमेंट -1 है, ठीक है? correct. लेकिन जब हम इस सब एरे से ये येलो वाले सब एरे में मूव कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इसको रिमूव कर रहे हैं और इसको वो इसको ऐड कर रहा है. ऐड हाँ. कर रहे हैं, उससे क्या होगा? Your negative integer will stay same only. नो मतलब ऐसा भी तो हो सकता था कि ये -12 होता, उस केस में तो फिर नेगेटिव Oh इंटीजर चेंज हो yeah, जाता, that's true. राइट? तो यहाँ पे इतना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है प्रोसेस, मतलब सीधा सीधा नहीं है प्रोसेस। देखो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट सब एरे राइट ऑफ साइज समथिंग, हाँ. हम क्या करेंगे कि लेट्स क्रिएट अ लिस्ट और यू कैन से एरे और वेक्टर, कुछ भी बोल दो, अभी के लिए मैं वेक्टर बोल देता हूँ, ठीक है? एक वेक्टर बनाएंगे और इस पे आइटरेट, फर्स्ट सब एरे को तो हम मैनुअली मतलब कर लेते हैं ना, थोड़ा मतलब एक एक करके जाए, तो हमने इस पे Right. देख लिया, इसमें मुझे क्या क्या नेगेटिव वैल्यूज आए, -1 आया और -7 आया, तो मैंने इसको वेक्टर में डाल दिया, ठीक है? हाँ. अब देखो मैं ध्यान से क्या करता हूँ, तो बेसिकली नाउ आई नीड टू मूव, मतलब ये वाली सब एरे का तो मुझे पता है कि -1 आंसर है, तो मैंने आंसर में -1 लिख दिया।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस सब एरे को शिफ्ट कर रहा हूँ, राइट। बेसिकली आई एम हाँ रिमूविंग दिस एलिमेंट। अब रिमूविंग करते टाइम मैं चेक करूंगा कि क्या मेरे वेक्टर में मैं 12 रिमूव कर रहा हूँ, राइट। तो 12 तो चलो नेगेटिव एलिमेंट है ही नहीं, तो 12 को रिमूव करने से कोई चेंज तो आने नहीं वाला, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव हाँ एलिमेंट्स। 12 तो पॉजिटिव हम्म गए है ना, तो इसको तुम रिमूव कर दोगे तो कुछ चेंज नहीं आएगा तुम्हारे आंसर में। नो तो इसको Correct. हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। हाँ. तो हम यहाँ पे बढ़ गए और हमने क्या किया, 8 को इंक्लूड किया। तो 8 भी पॉजिटिव एलिमेंट ही है, 8 को भी ऐड करने से कुछ चेंज नहीं होता है, तो हमने उसको भी नो ऐड रखा। और हमारा ये वेक्टर हम मेंटेन रखेंगे, ठीक है। इसको देखो हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। Yeah. हाँ हाँ अभी अभी मैं ये वेक्टर का फर्स्ट एलिमेंट देखूंगा टू गेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू इन दिस सब एरे। आई जस्ट चेक द फर्स्ट वैल्यू इन वेक्टर विच इज -1। या तो मैं बोलूंगा -1 यहाँ पे आंसर में लिख दो, ठीक है। अभी देखते जाना ऐसा क्या हो रहा है। Right. तो ये -1 ही इसका भी आंसर होना चाहिए, विच इज एक्चुअली गुड, राइट। Right. अब देखो क्या हो रहा है, अब हम ये ग्रीन को इधर शिफ्ट करेंगे, राइट, मतलब ये वाला बनाएंगे, है ना। तो बेसिकली हाँ फर्स्ट नीड टू remove this -1. Since we are Right. removing this -1 and this -1 and this -1 are same, we should also remove it from this vector, करेक्ट ठीक है। Yeah. देखो मैं क्या मतलब ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा। और since we want to include, since we are including this -15, since this is negative value, I'll also include this in my vector. अब to get the Right. value of this subarray, to get the first negative value in this subarray, I'll again do the same thing कि यार फर्स्ट वैल्यू क्या है वेक्टर, -7 है, तो वही का वही यहाँ पे डाल दो बिना सोचे। अरे धीरे धीरे बात समझ में, देखो Yeah. क्या होगा। हाँ हाँ अब जब हम I understand. नेक्स्ट नाउ जब हम नेक्स्ट सब एरे पे मूव करेंगे तो हम 7 को उड़ा रहे हैं, 7 को मतलब रिमूव कर रहे हाँ हैं। 7 को रिमूव कर रहे हैं तो ये 7 यहाँ पे भी है, इसको भी रिमूव कर दो यहाँ से, क्योंकि हमें पता है ना अब करेक्ट 7 आंसर हो ही Okay. नहीं सकता है, राइट। हाँ एंड वी आर हाँ इंक्लूडिंग 30, तो 30 तो नेगेटिव है ही नहीं, तो कुछ मत करो। तो नाउ टू गेट फर्स्ट नेगेटिव इन दिस सब एरे, फर्स्ट नेगेटिव कुछ नहीं होगा, फर्स्ट वैल्यू ऑफ वेक्टर ही होगा जो कि 15 है, -15। Hmm. तो ऐसे तुम्हें यहाँ पे एक और वेक्टर भी मेंटेन करना पड़ेगा, समझ गए। ओह हाँ 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 I understand now. और उसके बाद चीज़ें करनी पड़ेंगी। देखो एक बार और थोड़ा और आगे तक के देख लेते हैं। अब इस सवेरे के बाद नेक्स्ट सवेरे ये वाला आएगा, तो इस सवेरे मैं क्या कर रहा हूँ, 8 को रिमूव कर रहा हूँ, 8 तो नेगेटिव है नहीं, तो उसको रिमूव करो, इंक्लूड करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। 16 को इंक्लूड कर रहे हो, वो भी नेगेटिव नहीं है, तो उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अभी भी Right. फर्स्ट एलिमेंट जो है वो यहीं वेक्टर में ही 15 रहेगा। बेसिकली वेक्टर पता है Right. क्या रखेगा, वेक्टर ये रखेगा कि इन योर करेंट सब एरे, इन योर करेंट सब एरे कितने नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और उनका ऑर्डर क्या है। वेक्टर यही चीज़ रखता है। देखो जब फर्स्ट टाइम था तो वेक्टर ने क्या रखा था, -1 और -7, है ना। तो हाँ बेसिकली वेक्टर में Yeah, वही, I'm understanding वेक्टर now. में Yeah. सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज़ ही हैं, समझ गए, और Yeah. उनका ऑर्डर भी सेम है। तो बेसिकली जब जब किसी केस में जब तुम आगे बढ़ोगे ना धीरे धीरे, तो जब कोई केस आएगा जब तुम ये -1 को रिमूव कर रहे होगे, तो तुम यहाँ पे चेक कर लोगे कि क्या फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे -1 ही है क्या। अगर है तो हम वेक्टर में से भी रिमूव कर देंगे, बिकॉज वेक्टर क्या क्या काम है, Yeah. वेक्टर का काम है व्हाट आर द नेगेटिव Just वैल्यूज इनसाइड योर नेगेटिव इन योर करेंट सब एरे, इसका यही काम है। right, हाँ right. और Now उसका, I'm understanding. हाँ Yeah. भाई, और करेंट सब एरे में नेगेटिव वैल्यूज क्या है, उनका ऑर्डर क्या है। तो अगर ऑर्डर पता है, नेगेटिव वैल्यूज पता है, तो जब हम किसी चीज़ को रिमूव करेंगे तो हम वेक्टर में से भी रिमूव कर देंगे, क्योंकि अब वो इट इज नो लॉन्गर इन द वेक्टर, मतलब इट शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द वेक्टर इटसेल्फ, क्योंकि वेक्टर का काम ही ये है कि वो नेगेटिव वैल्यूज रख रहा है इन द करेंट सब एरे, ठीक है। तो अगर तुम्हारा हाँ करेंट सब एरे चेंज हो रहा है Hmm. और अगर ये यहाँ पे आता है तो तुम ये 1 को रिमूव कर रहे हो ना, -1 को, तो तुम्हें यहाँ से भी रिमूव करना है, समझ गए। Right, right. तो यहाँ पे एक वेक्टर मेंटेन करना पड़ेगा। वेक्टर से अच्छा है तुम एक got क्यू it. मेंटेन कर सकते हो, बट अभी तुम लोग को क्यू आता नहीं है, इसलिए मैं क्यू नहीं बोला। अब वेक्टर को मेंटेन कैसे करोगे, मतलब तुम ये वैल्यू को उड़ाओगे कैसे। तो इसको उड़ाने का तरीका ऐसा है कि तुम 2 पॉइंटर्स यूज़ कर लो, 2 पॉइंटर्स भी नहीं, 1 पॉइंटर बेसिकली। तुम क्या करो, देखो मैं एक बार फिर से प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ। बेसिकली द पॉइंट इज कि देर इज नो, मतलब कोई तरीका नहीं है वेक्टर से फर्स्ट वैल्यू उड़ाने का। वेक्टर जो होता है उसमें से तुम लास्ट वैल्यूज उड़ा सकते हो वेरी क्विकली, फर्स्ट वैल्यू इरेज करने में ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग जाता है, क्योंकि अगर कोई वेक्टर है, मान लो ये है, ठीक है। अब अगर इसमें से हम ये फर्स्ट वैल्यू अगर रिमूव करेंगे ना, तो ये वेक्टर क्या करता है कि ये सारे वैल्यूज को एक एक बार शिफ्ट करता है, समझे।
Right. तो बेसिकली ये ऑर्डर ऑफ एन टाइम हो जाता है अगर तुम किसी बीच वाले वैल्यू को निकालोगे इंस्टेड। और लास्ट वाले वैल्यू को तो उड़ाना काफ़ी ईजी है ना, वेक्टर इसको भूल जाएगा, वेक्टर बोलेगा हाँ ये तो हाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता है ऐसा करके। बेसिकली रिमूविंग अ मिडिल वैल्यू फ्रॉम वेक्टर इज़ वेरी एक्सपेंसिव टास्क, क्योंकि अगर तुम इसको रिमूव करोगे ना तो ये स्पेस खाली हो गया तो वेक्टर पहले 4 को यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो 4 की जगह पे Correct. 5 को डालेगा। Correct. दैट्स वाई इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, दैट्स वाई वी डोंट रिमूव, दैट्स वाई वी डोंट इरेज एनीथिंग फ्रॉम वेक्टर्स एक्सेप्ट द लास्ट वैल्यूज। ठीक है, तो अगर correct. अभी हम क्या बोल सकते हैं, देखो अभी हम क्या बोल सकते हैं कि मान लो कि तुम्हें ये वाला वैल्यू रिमूव ही करना है, तो तुम अपना आई पॉइंटर जो है एक पॉइंटर बना लो, उसको यहाँ पे खड़ा कर दो, तो ये आई पॉइंटर तुम्हारा स्टार्ट बता देगा। एक स्टार्ट पॉइंटर बना लो वेक्टर में, तो यहाँ खड़ा खड़ा कर दो। इट एक्चुअली मीन्स कि यू हैव समहाउ रिमूव्ड इट, है ना, तुमने एक्चुअल Yeah. में वेक्टर से रिमूव नहीं किया, पर तुमने स्टार्ट पॉइंटर बना लिया, क्योंकि अब इसको हाँ पॉइंट कर रहा है। अब देखो कैसे चलेगा ये काम। एट बिगिनिंग तुम्हारा सब एरे ये है, तुमने बोला वेक्टर में क्या क्या आएगा, -1 -7, और स्टार्ट अभी यहाँ खड़ा हुआ है। हम्म, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ ये वाले सब एरे पे जाएंगे, तो वी रिमूव 12, इट डजेंट मैटर, रिमूव एडेड 8 डजेंट मैटर बिकॉज ये नेगेटिव वैल्यूज हैं ही नहीं। फिर हम ये वाले सब एरे पे गए तो हमने -1 को रिमूव किया, एंड सिंस -1 इज एक्चुअली इक्वल टू द सेम फर्स्ट वैल्यू, वी शुड रिमूव इट फ्रॉम वेक्टर। तो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग आई विल से स्टार्ट यहाँ आ जाएगा, समझ गए। हाँ तो ये हाँ. -1 एक्चुअली में वेक्टर में है, बट अब स्टार्ट यहाँ पे, तो अभी हम बस ये -1 को भूल सकते हो तुम किसी तरह, है ना, क्योंकि स्टार्ट को तुम कभी पीछे नहीं ले जाओगे, स्टार्ट का काम है आगे जाना, समझ गए। Right. और तुम -15 को इंक्लूड करे तो वेक्टर में -15 को इंक्लूड कर दो, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा वेक्टर ना अभी इतना इतना ही बचा है, मतलब एक्चुअल में तो पूरा है, बट स्टार्ट जहाँ से तुम वहीं से देखोगे तो वो इतना ही बचा है, हाँ समझ गए। Correct. अब नेक्स्ट सब एरे में जब तुम यहाँ पे मूव शिफ्ट करोगे, जब तुम इसको देखोगे तो तुम -7 को उड़ा रहे होगे, तो तुम वही स्टार्ट को चेक करोगे क्या करेंट हाँ वैल्यू v ऑफ स्टार्ट के इक्वल है क्या। अगर v ऑफ स्टार्ट के इक्वल है तो वी जस्ट नीड टू इंक्रीमेंट द स्टार्ट, दैट्स इट, बिकॉज वी नीड टू रिमूव दिस वैल्यू ना, तो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग लेट्स इंक्रीमेंट आवर काउंटर ऑफ स्टार्ट, ऐसे भी तो कर सकते हैं। हाँ correct. तो ऐसे मतलब इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना होगा कि यू नीड टू I understand. क्रिएट एक्सटर्नल वेक्टर, एडिशनल Yes. वेक्टर, ठीक है। Okay, good. I'll do that. गुड, और बताओ और किस प्रॉब्लम में दिक्कत था। I'm just solving number 5 right now, Yeah. so I don't have any doubts except number 3, which ओके, you अगर just तुम did. इफ यू आर एबल टू सॉल्व नंबर 4 देन सॉल्विंग नंबर 6 एंड नंबर 5 वोंट बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ओके। यू आर Yeah. एबल टू Yeah, सॉल्व yeah, अ प्रॉब्लम इन विच यू आर नॉट अलाउइंग एनी कैरेक्टर टू रिपीट। तो अभी yeah, यहाँ yeah. पे जो ये जो Right. प्रॉब्लम है ना, ये वाले प्रॉब्लम में you can have k unique characters, so basically in total you can have k unique characters in this problem, और इस Yeah, ये जो प्रॉब्लम है ये शायद 2 यूनिक कैरेक्टर्स वाला ही है, फ्रूट वाला, yeah. इसमें 2 है, Okay. और देन if you are able to solve it for 2 then just extend the same concept for k, Yeah, exactly. ठीक है। Huh. Huh. ठीक है, so I think that's it for today's session, है ना। Yeah. make sure to watch the recording of today's session, है Yeah. ना, before, Yeah. Got ठीक है। तो कल हम लोग क्या करने वाले हैं बताओ एक बार। we will be We're gonna solving do harder advanced problems problems of on yeah, binary Hard. search and answer, ठीक है। Yeah. yeah. Okay, cool, so that's it, Okay. bye. Okay, bye.